Now, if you all want, you can ask questions from Arjun. For females, I'm going to share a different link in the group. Okay? Females के लिए, I have asked the female to take Arjun, so you clarify their questions. Yes, ma'am. I will just send a different link in the group. Okay? Hi Arjun. Hello. Before going for doubts, I want to ask you can describe your SSB experience, like in a short summary. Yeah, definitely. So my reporting was at SSB Kolkata on 11th of November. So as we all know that SSB Kolkata is the only board where day zero is there. Like you have to stay there because the distance between the Sialda railway station and SSB Kolkata is around more than 40 kilometers. So my entry was SSC Navy Tech. So around 60 of us reported there, and the next day our screening process started. So first, of course, as you all know that there is OIR, two OIR sets were given, and the OIR for I guess technical entries are little bit tough as compared to written entries. And then we had a picture shown in which I remember that there was a security guard sitting and there was a child of around my age only, 18 to 20, and he was waving off to two persons of you can say maybe they were these batchmates or a little bit elder to them, a little bit elder to him. So I guess the age was around 24 to 25. So I made a story regarding that his meeting his cousins for the first time after joining the college. And as I started the story, it was my second attempt. I got screened out in 10 plus 2 BTech entry for technical entry scheme, and तुम्हारे thereby तुम्हारा जो message था ना कि I got recommended in my yes, first. ma'am. Actually, I wrote this because when I was filling the I PIQ know form. that. Yeah, but there was somebody who was commenting that this is fake. No, ma'am. Actually, while I was filling up my PIQ form, I was told that you do not have to write the screen out. You just only have to write the number of attempts. And for those who are screened out, it will be considered their first attempt only at SSB. And you don't have to mention the chest number or the date or the entry. That was what I was told. So I wrote in that sense only that this was my first attempt, like first full attempt because I was a fresher for stage two. हाँ, हाँ. That is why I did it. So continuing after the story narration, one thing I would like to say that you should narrate your story in a very precise and cohesive manner. It should not go like as ma'am told like what is happening. Like first you should see the story and try to visualize everything and go for a clockwise direction. Do not write anything. Try to observe for more than 30 seconds. Thereby, three things very basic. Is what is happening in the situation, what led to the situation, what is happening in the situation, and what is the likely outcome. And also write the desires, moods, and the feelings of the main character. So these very basic things, and you will be told by the assessor like what you need to do. Like please pay uh, thorough attention to what is being given in the instructions. So afterwards, our narration started. So we were divided in the groups of 4, 15, 15, 15, and like this. So then after narration, it was GD, and GD lasted for only 2 to 3 minutes. And the GTO said, "Okay, gentlemen, we have got a fair idea that it is around a college fest, as most of the people in my group has said college fest." So I agreed with them. Yes, it is a college fest, and he said more of you have said the number of characters right, and the narration was well of this group. Now you may go and head for lunch, and thereby we will be telling you the results. So 17 of us got screened in, and 9 were freshers and 8 were repeaters. Then at the main thing, then at 6 p.m., 6 a.m. the next day, we had our psychology. Again, the pictures were shown, and this time the picture was very, very clear. There is no issue like मेरे को जो picture दिखाई थी, it was little bit hazy. कि आप सही से नहीं कर पाओगे, you have to focus. But this time, as
of course, ma'am said the picture would be clear. So it was very clear. Now, the main thing comes, like the way ma'am is telling you the things to be done. Like at first, I thought when I joined this SSB ma'am's session, so it was like okay, normal TAT padhayenge and stuff like that. No, she started with okay, write three things you are grateful for, and write three observations. Like, it helps. It helps if you do every day. Then ma'am started with word association, little by little, word, then sentence, then story, and then uh, little by little we went on. So please, if a homework is given or if anything is told to you in the class, do revise and do improvise, and you will be through. So in stories, of course, you all know what time is allotted to you to write the stories, and of course it's same 30 seconds. The picture will be shown, and then next 4 minutes will be even. Then what I feel was the strongest point in my psychology test was SRT, and the weakest one was WAT. So the weakest one was WAT. So एक minute. So I continue करूँ? Yes, sir. Thank you, sir. So the weakest point was, according to me, was WAT, because I was not able to write the sentences, good sentences, in that time bound manner. So I remember in my WAT, many negative words were there. So, and ma'am said that you need to write 100 words, 100 negative words, and that to first write your emotion and then write your words. And eventually, in 2 days, of course, of course, you need to give time, because if a word comes, for example, avoid, so what you will write? So I wrote that healthy people avoid junk food. So it's a good sentence. So like this only, I wrote this 100 sentences, and before going to the psychology test, I revised it. And I guess around 5 to 10 negative words were there, and I was easily able to tackle it. Then SRT, as I said, I'm good at SRT. I know, so not much amount of practice was there. And in beforehand, I practiced SGT, self description test, and it's very important. Why? Because you will fill PIQ forms twice. वन आई मेरे को ऐसा लगता है, मेरे पहली सीटी तो मैं ज्यादा नहीं बता सकता, बट मेरे को ये लगता था कि वन PIQ must of course will go to the interview, and the second PIQ will go to the psychologist. So now what you are writing in PIQ must match your SGT also, your SRT also, and your pictures also. And as ma'am said, 70% of the weightage goes to WAT. So, for example, if I'm writing, I have done many leadership roles at my school and college. So, if a picture is shown and if there is fire, and I've made a main character in that only, and if I say I'll call ambulance and stuff like that, I'm not involving myself. So it shows that no, I'm faking it. Some or the other way I'm faking it. Either in the interview or either in the GTO, they will catch you. So what you are writing should be original, should be true to yourself, because that is only you will be able to show in each and every task. And after psychology, I had my interview. So in interview, it lasted for very short, 20 to 25 minutes, and the whole interview was on PIQ. Each and everything of PIQ was asked to me, and PIQ में there's one CIQ like comprehensive. ऐसा होता है मतलब कि 7-8 क्वेश्चंस लगातार बॉम्बार्ड करेंगे आप पे. So be ready for it, because for the first time when he started asking me, so I was a little bit like he started with, okay Arjun, let's start with the interview. Now I would like to know your education qualifications right from 10th, 12th. What was your favorite subject, and who was your favorite teacher? Who are your best friends, and why they are your best friends? Tell me 2 qualities of the best friends. Tell me 3 strengths of your father and three areas of improvement. So मेरे से बोला कि मैं तो पहले क्वेश्चन के बाद मैं रुक गया. मैं था तब आई वाज प्रिपेयर्ड, बट उस टाइम कुछ हो गया. So then he of course repeated the questions because it was the first time. Then again, after 5 to 10 minutes, again CIQ regarding my family. Okay, tell me how many members in the family. And they even also asked me about my maternal family and my grandfather, grandmother, everything, each and everything. And then, of course, questions were asked on hobbies and interests. I remember I wrote playing books
Now I'll tell you how to be smart. Like, I'm telling you, as I have not read many books, but I knew that this, as I have written, so लिखने के बाद मेरे को लगा कि शायद नहीं लिखना चाहिए था, because I thought कि क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे. So आया कि प्ले, उसने पूछा कि अर्जुन यू रीड बुक्स, मैंने बोला यस सर. व्हाट काइंड ऑफ बुक्स, मैंने कहा सर नॉन फिक्शनल बुक्स. देन ही सेड व्हिच बुक हैव यू रेड रिसेंटली. सो आप सभी लोगों ने वो वाली मूवी जरूर देखी होगी, जैसे भाग मिल्खा भाग, नो. सो मैंने बोल दिया कि सर आई द रेस ऑफ माई लाइफ में मिल्खा सिंह, एज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एफकैट एंड सीडीएस. तो बुक्स के बारे में, ऑथर्स के बारे में जानना होता है, और मैं रिवाइज कर रहा था इंटरव्यू के पहले, मैं चलो देख लेता हूँ, और मैंने वही बोला तो उन्होंने बोला ओके. और सडन जो क्वेश्चन आया ना मेरे पास कि व्हेन ही रोट दिस बुक, आई न्यू, उनको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि उनको नहीं पता, बस ये जानना चाहते थे कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ. सर ने सेड सर, मैंने भी इतना ज्यादा फेंका नहीं उसको, मैंने बोला कि सर आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, बट इतना मेरे को पता था कि आफ्टर कंप्लीटिंग हिज करियर व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 55 to 60 years old, he wrote his book. And then he said, what was his greatest achievement? I said, sir, he won gold medal at Olympics. Oh, sorry, Asian Games. And what did he qualify for Olympics? मैंने बोला yes sir, 1958 Melbourne Olympics. And thereby he asked कि what happened there? मैंने बोला sir कि he was not able to qualify for the finals. And when I came back, I went to the internet cafe, as phones of course are not given to us, and I googled it, and it was right. And be thorough with your like, for me as a fresher, I believe that no technical questions were asked to me, like only for engine, and there were engine and two recent news about the Indian Navy. And I guess it all depends about the interview, but you should be thorough. You should be thorough with the for which branch you are applying, and thorough with the Indian Navy or Army or Air Force for any entry you are going. Then the very interesting thing comes, the GTO. So our GTO was very, very strict, or you can say he was putting pressure a lot. At 6 a.m. we reported outside the group discussion hall. So he said कि last batch पूरा wash out कर दिया है. If you will not listen our instructions properly, then wash out कर दूंगा. And in between I remember एक ऐसा moment आ गया था पूरे group में. He said कि if he was not bound to take GTO task, he would have personally escorted the whole group outside the gate just now. And believe me, it's all about they are putting pressure only just to see who sustains at the last. And I remembered only three important, instructions given by the GTO. The gentlemen, it does not matter if you perform bad in one task, because there are series of tasks on which we assess you. If you do well in the next task, then of course you will get selected. So do not think about a particular task and just move on. And secondly, what do you do before the task and what do you do after that? After that, it does not matter. What you do during the task, it all matters. And the third thing was perform your best, give your best. So I remember there was a time I had prepared a lot of lecture. That is why I became confident while speaking. So my before giving lecture, so of course there was two GDs in which the topics were given, and topics were that why Indian population is having issues regarding health. So three reasons were there. One was adulterated food, second was sedentary lifestyle, and third was air pollution. So we had to discussion of that. GP is also not that tough. Okay. And then afterwards we were taking outside for the PGT and the HGT. You will all be shocked to know that my PGT and HGT lasted for only 1 minute. Like only 1 minute, nothing. He said 45 minutes dunga, and he did nothing. He said आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, because I think he was either fed up with us, and believe me, वो fed up भी नहीं थे. He was just putting pressure, and he said only 10 seconds. He said between the GP that it takes only 10 seconds to know who will get recommended or not. And also in the lecturate, I was saying that in the lecturate, I was just number one. So each and every time I was being called to do the task first. So कभी कभी एक ऐसा हो जा रहा था, इंस्ट्रक्शंस एक दो मैं भूल जा रहा था उनके. तो he said, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद बोला उन्होंने lecturate में, okay, now just number will go and introduce himself, tell about his educational qualifications and his hobbies, and then he will pick up the card, go and prepare. मैं क्या सुना, मैं वहां गया और मैंने गुड मॉर्निंग जेंटलमैन बोल दिया. So
एड्रेस करना था जीटीओ को, नो इशू नो, और उसमें वो उन्होंने मतलब माथा पकड़ लिया ऐसे, क्या है ये। देन ही सेड आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, यू जस्ट गो। So I picked up the card and I went out. Then I remember I was just saying to myself कि मैं इतना दूर आया, मैंने इतनी मेहनत करी इस चीज के लिए तो नहीं। Now I'll pick up the topic and believe me, अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा था ना, जितना वो प्रेशर कर रहा था उतना मैं आपको बैकअप कर रहा था। नहीं नहीं, तो ये बहुत जरूरी है, आपको हमेशा बैकअप करना, आपको हर दिन पे बोलना कि नहीं नहीं, कभी खराब लगता है तो नहीं नहीं, होगा होगा, 100% होगा। ये चीज करना हर हर मतलब हर दिन ही करना। कभी-कभी ऐसे-ऐसे दिन आएँगे आपको करेगा नहीं, मन नहीं करेगा करने का, बट डेफिनिटली करना ज़रूर। सो मैं क्या हेल्प हुआ कि जब मेरे पास 4 टॉपिक थे, प्रोहिबिशन, इंडियन सिनेमा एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स, और एक और कोई चौथा था, बट दैट वाज़ वेरी ईज़ी। सो इन 30 सेकंड्स ओनली I went in and said, I will, sir, I will speak on importance of border routes. He said, अच्छा, you are ready? मैंने बोला, yes, sir. बोला, कार्ड, बोला, ठीक है, जाओ, जाओ। Then I spoke so well. Like, मेरे को नहीं पता था कि मेरे को कुछ नहीं आता importance of border routes में, but जैसे मैं बोलना शुरू किया ना, because I had knowledge, पाकिस्तान, बांग्लादेश, China, then we have then the importance of border road organization, why all weather roads are important for Indian Army. At the time of troops deployment, this connectivity becomes a very important issue. So सब कुछ highlight किया and then he wrote something. So अगले दिन we were called at again 6 and we were having our IU, individual obstacle. So individual obstacle में again एक instruction मेरे को दिया था. I'm telling you my weaknesses, but I'm telling you, sir, not my weakness, I'm telling you my mistakes. But I'm telling you, it does not matter. Literally, it does not matter. Just perform and perform. Why? Because at individual obstacle, he said, gentlemen, you don't have to do commando work. And he said, I will give you liberty. And I did commando work. And I did commando work. उसकी वजह से मैं I think I was able to only do 7 obstacles. Like I am energetic and a little bit and fit. So मैं कर सकता था, 8-9 तक भी छू सकता था. Then he said कि what type of candidates, मैंने और 2 चेस नंबर ने और रिपीट कर दिया था, तो what kind of candidates you are, मतलब तुमको जीटीओ की कोई वैल्यू ही नहीं है, स्टफ लाइक दैट। देन आफ्टर आई थिंक आईओ के बाद उसके बाद कमांडो टास्क था। नाउ व्हाट माय जीटीओ डिड, he was thinking, or maybe I am just thinking, that I was not, whenever I was being called at first, so I was not able to perform up to that extent what he thinks I could easily do. So what he did was उन्होंने सबको बुलाया, 8 चेस्ट नंबर को बुला लिया और लास्ट में चेस्ट नंबर 1 बुलाया। एंड आई रिमेंबर आई वाज कॉल्ड 5 or 6 टाइम्स एज अ सबऑर्डिनेट विद माय टीम। एंड आई थॉट कि इतना इजी सबको कमांड टास्क दे रहे हैं तो मेरे को भी क्या ही देंगे। सो व्हेन आई वेंट, ही सेड, ओके अर्जुन, यस सर, वेयर आर यू फ्रॉम? सर आई एम फ्रॉम, सर वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? मैंने बोला सर आई एम कमिंग फ्रॉम कोलकाता ओनली। ओके, फ्रॉम वेयर? मैंने सर इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कोलकाता कैंपस। बोला ओके। सो देन ही स्टार्टेड लिटिल बिट ऑफ जगह के बारे में बात करने। उन्होंने बोला कि सी अर्जुन, मैंने 2 दिन में, आज यहाँ पे देखो प्रेशर कैसे बनाते हैं, मतलब 2 दिन में तुम्हें समझ नहीं पाया कि तुम क्या करना चाह रहे हो। और ये मेरे को बोला कि नाउ अर्जुन आई विल गिव, दिस वाज द लाइन ऑफ द जीटीयू, कि मैं तुमको एक चांस दे रहा हूँ एंड अगर तुमने इसमें ये कर ले गए तो मैं तुम्हारा आगे का देख लूंगा। सो आई गॉट ऑल्सो वेरी गॉट एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड कि अब तो चलो एक तो है कि मतलब मैं पूरे टाइम डाउन था, बट आई वाज स्टिल परफॉर्मिंग। मेरे को इतना, वही जो 3 मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस बताए थे उनके, वो उसके बाद उन्होंने, मतलब ये याद रखना अच्छे से इंस्ट्रक्शंस, वो उसी चीज पे देख रहे हैं और वो अच्छे सही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप ही के काम इजी करने के लिए वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। सो he called me and he said like this कि if you will do this right and then I will see you, मतलब देख लूंगा तुम्हारा कि क्या होता है। तो बोला कि ओके जेंटलमैन, टर्न अराउंड, दिस इज योर टास्क। सबसे मुश्किल कमांड टास्क भाई, उसमें वो झूला झूल रहा था और कमांड टास्क का मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। मैम से पढ़ने के बाद एसएसबी प्रोसेस पूरा समझ में आ गया था, इंटरव्यू समझ में आ गया था, साइकोलॉजी समझ में आ गई थी और उस पर मेहनत कर रहा था। बट जीटी वो समथिंग, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, कॉलेज भी करता था, फुटबॉल भी। मैं आईआईटी, मेरे को याद है जब ये एसएसबी का कॉल लेटर आया, सो आई वाज एट आईआईटी बीएचयू, कमिंग फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। सो और क्योंकि मेरा एफकैट का भी था उसी टाइम, सिमिलर टाइम पे, तो मैंने सोचा हाँ ये तो यहीं पे है तो इसको भी दे देते हैं। सो आई जॉइन फॉर एफकैट, बट इवेंचुअली गॉट रिकमेंडेड फॉर एसएससी नेवी टेक। एफकैट की भी, एसएसबी का भी बताता हूँ बाद में क्या हुआ उसका। सो देन उन्होंने मुझे बुलाया, देन ही सेड ये करूंगा, तो उसमें कमांड टास्क भी उन्होंने दिया, कमांड टास्क भी उन्होंने बहुत टफ दिया। और मैंने एक ऐसे बंदे को बुलाया था, वहां पे भी स्मार्टनेस दिखाना, आप ऐसे बंदे को बुलाना जिसको पता हो कि वो आपकी थोड़ी मदद कर सके। सो आई कॉल्ड वन हिमाचली,
So I'm not telling how he helped me is he was a little bit from rural side. So उसको पता था कैसे सब चीजें करते हैं, and he was very good at GTO task. So I called him and he was a very दोस्त बहुत बनेंगे आपके SSB में. As a fresher में तो बहुत दोस्त बने. So I called him. Then he was a little bit helping me. Then GTO said, "See, chess number 7 is laughing at you. What you are doing? What type of commander you are? You are inefficient. Stuff like that. Putting pressure, and pressure. Nothing else." So first बोला कि okay अब तुम जाओ वहाँ पे, अब बताओ वहाँ पे क्या करोगे. And even though he was helping also, he was helping me. बहुत प्यार से बोले थे, but again वो एकदम से फिर वो और भी बहुत सारी चीजें बोली हैं, बोलना कोई वो नहीं है, but समझ जाओ बहुत कुछ बोला. Then he said, "Okay, मैं तुम्हारा समझ गया." Then at last he said कि gentlemen, सबको मैं 5 बार गया था, सबको ये बोलना था कि you must thank you your subordinates. No, thank you subordinates for helping me to complete this task. बोलता what thank you? Your chess number 7 only did all the tasks. What you were doing? So like this ended. Then of course I'm please do remember that one point here that you must not feel that I did not perform. I performed very well in each and every task. अंदर से लगता था, but the pressure he was putting at me, no, that was immense. तो उसके वजह मतलब ये नहीं लगता था हर टास्क के बाद कि अरे मैं तो बहुत ही अच्छा कर लिया. I was like okay because putting pressure मैं थोड़ा बहुत प्रेशर ले लेता था तो वो और प्रेशर देता था. फिर मैं कहता था नहीं ये प्रेशर के लिए हो रहा है. ऑलवेज रिमेंबर अगर आप पे प्रेशर बन रहा है ना तो देयर इज समथिंग ही वांट्स टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यू एंड सी. तो ये और अच्छी बात है. मेरे को इतना उस समय दिमाग में नहीं था बट ये मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा. एंड देन आवर कॉन्फ्रेंस वाज देयर एंड कॉन्फ्रेंस वी वर टोल्ड दैट हाउ टू एंटर द रूम एंड वेयर टू सिट एट द रूम. एंड देन आई रिमेंबर 15 मिनट्स लाइक 2 घंटी बजती है एंड देन यू नीड टू गो. सो 2 घंटी बजी एंड 15 मिनट तक आई वाज देयर ओनली. 15 मिनट तक नहीं बुला. देन आई वेंट इन. देन I remember the president was not asking the questions. The lieutenant commander who came for the closing address was asking me the questions. So the first question was, okay, Arjun, you're chess number 1. How do you feel? मैंने बोला sir, it feels great to be chess number 1. And उसके बाद मैंने ये भी बोला कि sir, sometimes it becomes tricky because each and every time you are called to do the task at first, but eventually throughout the days I became comfortable and performed well. And thereby I also got an opportunity to give my insight and opinion about the task to my other classmates. बोला okay, how did you prepare? ये क्वेश्चन मतलब मेरे से इंटरव्यू में पूछा था. So I specifically told them, sir, I prepared from SSB site. झूठ मत बोलना, ठीक है? मतलब वो पकड़ ही लेगा भाई. 20-25 साल का एक्सपीरियंस है भाई. वो कैप्टन कितने लोग एक्सपीरियंस होगा. मैंने बोला कि सर आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम SSB साइक एन ऑनलाइन सेशन. तो और इतने दिन का सेशन था एंड ये भी पूछा कि आपने क्या सीखा उससे. मैंने बोला कि सर मैंने बोला कि दिस session helped me to know the overall process of the SSB and I believe that if I am more aware then I can perform better. बोला okay. So एक क्वेश्चन और पूछा था. को नॉर्मली पूछा था, ऐसा कुछ खास नहीं था. तो बोला ओके जेंटलमैन हाउ वाज योर स्टे. मैंने बोला इट वाज ग्रेट. हाउ वाज योर फूड. इट वाज आल्सो गुड. उसने बोला ओके जेंटलमैन नाउ यू कैन गो. देन रिजल्ट्स अनाउंस हुए. सो आई वाज द ओनली फ्रेशर टू गेट रिकमेंडेड along with 2 repeaters. So total 3 recommendations out of 17. 3 recommendations, 60 reported, 17 screened in and 3 got recommended. 1 fresher, me, and 2 repeaters. And one of my repeater was my senior only at my college. ये दोनों का एक साथ आ गया था. He also got recommended. I also got recommended. So this was all about my experience at SSB Kolkata. But one thing, as I said, but I'm very grateful and thankful to ma'am and her classes because मेरे को ज़्यादा पता नहीं था SSB के बारे में. And also to my parents. मतलब अब पेरेंट्स से मैं बोलना चाहूंगा ना कि आप जब भी आपको लगे ना कि आप थोड़ा डाउन फील कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो मतलब हमेशा याद रखना कि आपके पास यू हैव अ फादर, यू हैव अ मदर एंड यू हैव आपके पास जो भी आपके भाई बहन हो तो वो हमेशा हैं. तो इससे अगर है ना तो मतलब और तो कोई चीज ही नहीं चाहिए आपके बारे में सोचने के लिए. यही पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो हमेशा हमेशा आपकी मदद करेंगे, हमेशा आपकी हेल्प करेंगे. तो उससे ज्यादा पॉजिटिविटी तो आपको मिल ही नहीं सकती है. और जो वो कहते हैं ना वो आपके भले के लिए कहते हैं. तो ये रिमेंबर करना. अभी जैसे मेरा मेडिकल भी चल रहा है ना, समटाइम्स भाई वहाँ मेडिकल में तो बहुत टाइम लगता है बट मतलब कॉल करता हूँ, बात करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है. और मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि भाई मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी और ये सब दिया कि आज मैं ऐसे बोल पा रहा हूँ आप लोग के साथ. मतलब ये है और मतलब ये बहुत अच्छी बात है. आप लोग को भी हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए अपने इस चीज के लिए.
तो दिस वाज ऑल अबाउट माय एसएसबी एक्सपीरियंस। और फिर मैं यही कहना चाहूंगा एट लास्ट कि भाई अब जो मैम पढ़ा रही ना, मतलब जो कुछ बता रहा है ना वो एक्सपीरियंस ही बता रहा है कि मतलब तो आप थोड़ा अब उसको सही से सुनो और आप उसको करो। और मैम भाई हेल्पफुल भी है, मतलब कभी भी मैसेज करते थे तो मैम टाइम मैम जैसे ही मैम को टाइम मिलता था शी ऑलवेज यूज टू रिप्लाई कि हाँ ये है, ये ऐसा ऐसा। सो उस पे मत रखना कि आप करते रहना, ठीक है। एंड वन थिंग एज आई रोट इन दी रोट जो मैम ने पोस्ट किया था उसमें मैंने ये भी लिखा था कि मैम आपने बोला था कि अगर जैसे इतनी किसी ने इंट्रो नहीं दिया हो तो मैम ने बताया होगा मेरा इंट्रो अच्छा है। तो मैंने इंट्रो मतलब अभी तो मैं थोड़ा जैसे मैम ने जो शुरुआत तो मैंने ऐसी डील करी थी, बट मैंने इंट्रो भी मैम को उस टाइम पे जब मैम ने मेरा फीडबैक सेशन दिया था तो काफी एंथुसियास्टिकली बताया था अपने बारे में, पूरा अच्छे से बताया था। अभी तो शॉर्ट में बताया तो शायद उसी के लिए मैम ने बोला होगा। और मैंने उस चीज में लिखी थी, मैम ने मेरे को बोला था कि अगर आपका साइक अच्छा होगा आपका इंटरव्यू आपको पास कर देगा। अगर आपका साइक में आपने थोड़ी सी मेहनत करी होगी ना, क्योंकि मैंने आपको पुराना वाला होमवर्क भेज दिया था, तो थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप पक्का आप यू आर लाइकली टू गेट रिकमेंडेड। और वो बात ना मैं अपने कॉन्फ्रेंस के जाने से पहले भी अपने दिमाग में रखता था, इंटरव्यू जाने के दिमाग में रखता था। और मेरे पापा ने बोल रखा था कि बेटा कूल माइंड और पेशेंस होके देना। और मैम ने बोला था कि काम काम रहना, ये 4 वर्ड अपने इंटरव्यू के पहले जाते हुए बोला, कॉन्फ्रेंस के बाद भी बोला। ये आपको काम करती है, क्योंकि भाई सबके दिमाग में वो थोड़ा रहता है, पैनिक रहता है, क्यों नहीं रहता है कि इतनी दूर आए हैं एसएसबी ये क्या होगा। बट हाँ, लिव इन द मोमेंट, परफॉर्म योर बेस्ट, है ना। एंड डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, एंजॉय योर स्टे एट एसएसबी। आपको बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे, मतलब आपको इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे ना वहाँ पे, आउट ऑल ओवर द इंडिया से लोग आए होंगे, तो आपको भी बहुत मजा आएगा। मेरे को तो बहुत ही मजा आया। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय जर्नी एट एसएसबी कोलकाता। Can I ask या श्योर। uh, which entry this was? Like, what priority you have given for Navy's take? As I've also given So applied for it. my preference is GS engineering. Okay, and what questions did I ask you about it? Like anything specific? No, he only, as my background is from BTech Marine Engineering, he only asked me, oh, gentlemen, tell me about, he asked me the rating of the engine, and thereby he asked me, what is the latest technology being used in engines. So as I'm from marine background only, so I told him about intelligent engines, that वो कैमलेस होते हैं, और फिर वो कैसे मतलब आपकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं, और डिजिटलाइजेशन भी उसमें होता है। और फिर उन्होंने पूछा कि आपकी मर्चेंट शिप्स में डेड वेट टनेज के बारे में पूछा क्या होता है, और बस बेसिक पूछा, उतना नहीं। देखो एट द एंड आई बिलीव एसएसबी इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी, नॉट अबाउट एकेडमिक्स। अगर एकेडमिकली होना होता कि पेपर निकाल के वो आपको पास करते थे, नो, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, हाउ हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। हाँ, मतलब अब एक और चीज़ होती है कि मैंने इसीलिए बोला ना कि सब कुछ मैच करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। आपके ट्रेड्स कम होंगे चलेगा, पर अगर वो ये सब मैच, जैसे उसको कहते नहीं ना, मन वचन और कर्म, ये जो होता नहीं है, जैसे आयो आपका मन आपका साइकोलॉजिस्ट चेक करता है, ये तब एकदम सोचता हूँ। अब इसमें और भी कुछ हो सकता है कि आप लोग का अलग पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आपका मन हो गया, आपका साइकोलॉजिस्ट चेक कर रहा है, वचन आपका आयो चेक कर रहा है कि कर्म। तो ये में तो ये जरूर करते होंगे बात की भैया ये इधर बोलते हैं काफी, मेरे मतलब स्टोरी में क्या कहते हैं, डेयरिंग। पर असलियत की पर्सनैलिटी अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होगा, इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होगा, या उधर जीडीयू में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आईयू में कहीं ना कहीं तो होगा, तो वो पॉइंट आउट करेंगे। लेकिन अगर मैं दिखाता हूँ कि हाँ मैं जो हूँ मैं वही हूँ, और ऑफकोर्स अपनी वीकनेस को थोड़ा आपको इतना नहीं बताना कि हाँ मैं जो भी वीकनेस है उसको भी थोड़ा पॉजिटिव में दिखाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। जैसे मेरे को पूछा था कि फादर की वीकनेस बताओ, तो फादर की वीकनेस तो सबको पता ही रहती है, तो सीधे सीधे नहीं बोल देना कि मेरे पापा बहुत गुस्से हैं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। बस इतना बोलना, मैंने तो ये बोला कि मेरे फादर को राइस खाना बहुत पसंद है और वो डायबिटिक है, और तो इसीलिए उस पे काम भी करना है। दूसरा मैंने बोला कि मैं फादर दूसरा मैंने बोला कि वो थोड़े से ना लिटिल लेस टेक सेवी, मतलब उनको फ़ोन वोन में थोड़ा वो रहता है, तो उसमें भी वो अभी इवेंचुअली सीख रहे हैं। तो ये ऐसे ही करके बोलना है, थोड़ा ईज़ी वीकनेस, मतलब ऐसा मत दिखा देना कि हाँ, ये तो बहुत ही कमी है। कमियों को रखकर अपनी स्ट्रेंथ पे काम करके दिखाना, और स्ट्रेंथ पे भी आप इम्प्रूव करोगे तो और ही अच्छा आप लोगों के लिए। पॉजिटिव रहना भाई, पॉजिटिव रहना, मतलब मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, बी पॉजिटिव और बी कॉन्फिडेंट ऑल्सो। और वो लिबर्टी वाला नहीं समझ में आया मुझे। मैं आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में बोला था, मतलब अगर आपको कमांड वर्क करना है तो आप कर सकते हैं, ऐसा बोला था क्या? No, he said that
gentlemen, I will give you liberty, like you don't have to perform commando task. And वो भी उन्होंने ऐसी इंग्लिश में बोला ना कि पता नहीं मैंने कर दिया जाके उसको। सो फिर तो उसके बाद भी थोड़ी डांट पड़ी, बट इट वाज ओके। Okay. Congratulations for your recommendation, bhai. थैंक यू सो मच यार। And you were telling about your FCAT SSB. So Yeah, what so was what it? happened was on 16 November I got recommended, and I took a medical extension for 1 week, and I went to a 4FSB Varanasi, and I reported on 18th morning. I got screened in 167 reporting, 65 got screened in, and then detailed document verification started, in which I was missing the 6th semester mark sheet, attested mark sheet. I have 5 semester का original था मेरे पास, 6 semester का नहीं था। तो उन्होंने पहले मेरे को थोड़ा डांटा कि तुम रिकमेंड हो गए हो व्हाट यूर। मैंने बोला कि सर मेरे पास उस समय टाइम नहीं था कि मैं संडे को जाके अटेस्टेड करा लूँ। तो उन्होंने बोला ओके, तो हम एसएसबी कोलकाता वालों से कांटेक्ट करेंगे। सो एंड दे सेड, और मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब हो रही थी, सो उन्होंने बोला एक ही ऑप्शन है, आप अभी वो फ्रेश डेट लो डायरेक्टली फॉर स्टेज 2। अच्छा, मेरे को पहले पता नहीं था पहली बार कि ये सब भी होता है, तो फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो दिस थिंग कि आप स्टेज 2 के लिए भी डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हो आफ्टर गेटिंग स्क्रीन इन। बाकी बोर्ड का मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 4FB वाराणसी में है ऐसा। सो दे फिल्ड माय डॉक्यूमेंट्स, दे फिल्ड वन फॉर्म एंड देन सेड यू मेल अस विद दिस फॉर्म the in any month. For example, if I want from February, you mail us in January, and we will give you any date in your choice of month. So अभी एक बार मेरा मेडिकल सब हो जाए, देन आई विल गो फॉर एफकैट। और अभी सीडीएस की पता नहीं है, चेक भी नहीं किया आई है नहीं आई है, तो मैं चेक करता हूँ उसकी एसएसबी कब होगी। जब पहले देखा था तो आई गेस 10 days बैक तो नहीं आया था, अभी देखा नहीं, देखता हूँ फिर। Okay, so I have a question from ma'am, if ma'am is here. Arjun, Yes. for AFCAT, for which branch you are going for? Like for flying or? No, not for flying, technical. Okay, Ground duty. so Yeah. okay, and also for this logistics administration or weapon system. So what they can ask? Any tech questions you can tell. Like for Indian Air Force, no, I like prepared from Wikipedia. Wikipedia, you can download that Wikipedia. I guess it's around 65 pages, and you can make short notes. So you will get each and everything very short points. उसके बाहर का कुछ नहीं पूछेंगे, क्योंकि उतना ही अवेलेबल है, जितना अवेलेबल है उतना ही आप बता पाओगे। और अच्छा है कि आप इतना सब बता पाओगे। सो यू कैन डू दिस वन थिंग फॉर एवरी ब्रांच। उन्होंने छोटा से छोटा बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स में दे रखा हुआ है, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो मैंने ऐसे उस चीज़ को प्रिपेयर किया था। ओके, और नेवी के एंट्री में आपको कुछ नेवी के बारे में पूछा था, लाइक सबमरीन्स कमांड और समथिंग एल्स? No, they just only asked me two latest news about Indian Navy. And I was also thinking कि मेरे को इतना कम क्यों पूछा? मेरे को लगा मेरे को इंडियन नेवी के बारे में एकदम डेप्थ पूछेगा। बट आई थिंक आई वाज़ अ फ्रेशर, सो मे बी उस बोर्ड में फ्रेशर को थोड़ा अलग से पीआईक्यू से पूछते हैं। पीआईक्यू तो पूछेगा ही पूछेगा। माय 100% 90 मोर देन 95% ऑफ द इंटरव्यू वाज़ ऑन पीआईक्यू ओनली। वो पीआईक्यू से ही सिर्फ सवाल पूछ रहे थे, नथिंग एल्स। और 5% और इधर-उधर। 20-25 मिनट का इंटरव्यू में मतलब पीआईक्यू सीआईक्यू के अलावा और क्या पूछा, लाइक जीएस और एनी करंट अफेयर्स वगैरह? No current affairs. Even though I mentioned him that in my day, he asked me my daily routine. I mentioned him, sir, I read newspaper daily, and I also like watching world affairs videos, because I had this knowledge. मैं सोचा थोड़ा तरफ इंटरव्यू पे लेके जाऊंगा, सो मेरे से वो पूछेंगे। बट ही डिड नॉट आस्क मी एनीथिंग, ही जस्ट आस्क मी कि तुम बुक पढ़ते हो तो बुक बताओ कौन सी पढ़ते हो। तो मैंने उनको बताया सर ये बुक पढ़ता हूँ। अच्छा, और 4AFSB में मेरा भी रिसेंटली मतलब 9 दिसंबर को रहेगा, तो फिर एनी मतलब टिप्स फॉर स्क्रीनिंग, लाइक व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, और So you have I done just want to something in your ask one question. So process? are you a fresher or are you a repeater? No repeater. Like I have also appeared for Navy SEDEC in on 18th of August, where I got CO. ओके, सो देखो मैं तो भाई मेरी तो ये तीसरी एसएसबी थी वहाँ पे। सो आई बिलीव दैट इज अ वेरी लॉट ऑफ देयर इज अ वेरी डिफरेंस फॉर अ फ्रेशर एंड फॉर अ रिपीटर। फ्रेशर में जाओगे तो यू विल गेट अ लॉट अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, बट यहाँ रिपीटर में तो
मैंने पहली बार फिश मार्केट देखा। मैं यहाँ पे जब मैं स्क्रीन आउट वाले में घुसा था, फिश मार्केट नहीं था, सब सुन रहे थे एक दूसरे की। बट यहाँ जब मैं गया कैट वाले में, बोलने ही नहीं दिया, मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं शायद आई गेस आई ओनली सेड वन थिंग कि जेंटलमैन, मैंने ये बोला कि पिक्चर में वो कुछ तो दिख रहा था पर्टिकुलर चीज, तो कोई नोटिस नहीं कर रहा था, तो मैंने चीज को बस पॉइंट आउट किया, वो भी किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। फिर उन्होंने बोला कि ओके जेंटलमैन नाउ यू कैन गो। तो मतलब आपकी नरेशन है उसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपका ओआईआर बहुत अच्छा होना चाहिए। The OIR was very very easy at 4FSP Varanasi. The one you get at Google, no, और जो आप ओरिजिनल, जो मैम भी, आप मैम से बोलोगे मैम भी शेयर कर देंगी। तो मैम, और जो मैंने शेयर ही भी करा था, तो बहुत ही इजी था मतलब। तो और 30 मिनट्स वर गिवन, सो आई वाज आल्सो शॉक्ड कि भाई इतना टाइम दे रहे हैं। यू रिमेंबर वो एक आता नहीं ना, क्रिस्टल वाला, हार्ड एंड एंगुलर वाला, ओआईआर में, जंबल वर्ड्स में, तो वो तक था, मतलब एकदम पूरा सेम था, कुछ भी डिफरेंस नहीं था। तो मुझे लगता नहीं ओआईआर में सबकी 1 रेटिंग आई होगी। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर नरेशन, हाउ गुड यू आर एट नरेटिंग ओके, एंड बस व्हाट। सिंगल पॉइंट ही बोला था सिर्फ। हाँ, सिंगल जी। पॉइंट ही बोला था उसमें, तो वो ओके। बोलने ही नहीं दिया भाई। वो चिल्ला रहे तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा चिल्लाओगे तो नहीं तुम्हें समझ में आएगा, नहीं मेरे को समझ में आएगा तुम क्या बोल रहे हो। सब बोले जा रहे हैं, सब बोले जा रहे हैं। हाँ, यू कैन डू वन थिंग, नो। और लाइक जब एकदम से ग्रुप शांत हो जाता है ना, देन यू स्पीक। तो शायद कोई एक बंदा, दो बंदा कोई एग्री कर जाए या तुम्हारी बात सुन ले कि हाँ जेंटलमैन, जस्ट नंबर इज सेइंग राइट। क्योंकि मेन हमेशा उस चीज का मोटिव क्या है, द मोटिव इज टू कम टू अ कॉमन कंक्लूजन और कॉमन कंसेंसस अबाउट द पिक्चर। तो उसको हमेशा ध्यान में रखना आप लोग कि इस चीज को ऐसे करना है, मतलब। और वही मैं बोल रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनना है। जो जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसका एक रीजन है देने का, तो वो उसको ध्यान से जरूर करना। और एक स्टूपिड डाउट है, अटेस्टेड मतलब वो जो कॉर्पोरेटर वगैरह थे उनसे अटेस्टेड करना है कि सेल्फ नो नो अटेस्टेशन? नो, नॉट सेल्फ अटेस्टेशन, इट शुड बी अटेस्टेड बाय, लाइक मेरे केस में तो आप अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हो। नो नो, आई पास्ड आउट अच्छा। फ्रॉम 22 अच्छा, तो बैच। फाइनल, तो मेरे में क्या था ना कि मेरे में 5 सेमेस्टर की तो ओरिजिनल मार्कशीट थी, लेकिन 6 सेमेस्टर में अटेस्टेड मार्कशीट का मतलब है कि मेरे एचओडी का साइन नहीं था उसमें। तो ओके। वो तो कंप्यूटर जनरेट कॉपी में तो कुछ भी एडिट करके ले आऊं, तो उनको ये था कि आपका क्यों नहीं आपने कराया, क्योंकि वहां पर भी चेक हुआ था सेम, वहां पे भी चेक हुआ था। तो मैंने तो एक ही कराई थी, मैं सोचा था देखते हैं क्या होगा। अब वो सबमिट कर ली उन्होंने वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिकमेंडेशन के बाद। तो अब फिर तो मैं वैसे ही चला गया। अब चला गया तो फिर उन्होंने बोला कि आप फ्रेश डेट लेके फिर आओ। ओके, थैंक यू। So So, I I have okay. Yes, Shiv Kumar. Thank you, Prakhar. Hello, Arjun. First of all, congratulations to you. thank you And भाई। my question is related to you might have asked by the IO that what is the reason behind that you want to join defense forces, whether No, be it in your no. but I have Uh, prepared this answer. I can tell you okay. what I would have said if he would have asked me. So If you do it's not a very short answer, it's a little bit long. So okay, और वो सुनते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको I'm आगे बढ़ा interested देंगे। to hear if you are comfortable to I don't know, sharing. of course, I'll say. Okay. So if he would have asked me, gentlemen, why would you want to join Indian Navy? And as I'm from merchant navy, no, merchant navy background, मतलब अभी शुरू नहीं करी सेलिंग, I'm in the final year, but पूछ सकते थे। So I would have definitely said, sir, I am very happy at my professional front, and uh, it offers a it offers future growth and prosperity and a financial stability at life. But at the same time, I think the I I think that Indian Armed Forces offers me a diverse set of opportunities. As you can be a soldier, you can be a pilot, you can be an administrator, you can be many such things, teacher, educator, etc. All under the same roof. And secondly, this was a little bit personal reason for me also, as my grandfather also served in the Indian Air Force. So this was also what motivated and inspired me to join for the Indian Armed Forces. And he also asked कि if this question was asked to me कि आपका इस attempt में नहीं होता है, then what you will do? And I said, I think I will get recommended this time, but if not, then I have 2 more attempts, one at the FCAT and one at the CDS for Indian Navy. I will go and then I will perform. And even though if I'm not able to do, I have a job. सो ये भी इससे दिखता है। अब और कहीं ना डेस्परेट मत हो जाना कि मतलब कि हाँ भाई इंडियन नेवी ही ज्वाइन करना है, आर्मी ही है, एयरफोर्स ही है, वो भी नहीं अच्छा लगेगा। आप मतलब लाइफ मत बना लेना उसको कि
मतलब Exactly. बनाना मेहनत करते रहना, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ दिखा के एकदम डेस्परेट ही हूँ, मेरे को तो और कुछ चाहिए ही नहीं, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये सब भी नहीं होना चाहिए। Agree with you. Thank you, Arjun. Arjun, bro, I'm asking something. So, as you have said that your narration should be crisp and concise way. So, according to you, what I can explain there, like action or something like that? You want to Yes. say? तो यू मस्ट, एज अगेन सेड, मैम ने एक चीज बोली थी, मैम सेड कि आप लोगों को ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस इन द सेंस कि वन गाय आज, जब हम लोग के टाइम पे थे तो वन गाय आज कि मैम पीपीडीटी के लिए कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो मैम सेड एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स यू शुड नरेट, मतलब आप मन में नरेट करो। सो हाउ आई डिड एंड हाउ आई एम एबल टू टेल यू everything very fluently is all about practice. Of course, many things are there. Like for the past 4-5 years, I'm reading newspapers. I'm into current affairs and general knowledge. Eventually, because I like it. It's not like मैं एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे को पहले से ही अच्छा लगता था, मेरे को इंटरेस्ट आता था इन सब चीज़ों में, तो इवेंचुअली आपके बोलने की और सब स्किल्स अच्छी करती है। पर्टिकुलरली अबाउट पीपी एंड डीटी, of course you will start with how कितने characters हैं, what the main okay, for example there are 4, good evening gentlemen, in the picture I perceive that there are 4 characters, all male. The main character of the story is Ramesh, age 18, mood positive. The action of the story is meeting his family, meeting his cousins after a long time after joining college. मतलब ऐसा, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस चीज की प्रैक्टिस, तो ये तो रटा होना चाहिए एकदम कि हाँ ये तो मेरे को बोलना ही है स्टार्ट में, ठीक है, अच्छा इंप्रेशन जाता है ग्रुप पे कि आप थोड़ा और कंसाइज हो। देन स्टोरी में वही जो मैंने आपको बोला कि माय स्टोरी वाज़ एट फर्स्ट, मेरी क्या, मतलब बहुत सारे जितने भी मेरे साथ प्रिपेयर करते थे, तो उसमें क्या मतलब मैम ही के साथ, मैं अलग से किसी के साथ नहीं करता था। तो उसमें क्या होता, सब सब अपने एक्शंस ही बता पाते थे सही से, कि मतलब आप ये बताते रहो कि हाँ, एक रमेश लड़का है, वो स्कूल जाता था। फिर उसमें आपको, अब जैसे पिक्चर में दिख रहा है कि कोई डूब रहा है, तो हाँ, ही वाज़ गोइंग टू स्कूल, देन ही सॉ, देन ही इमीडिएटली आपने एक्शन लिया। और अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी से मिल रहा है, तो आप दिखाओ ना कि ही फेल्ट हैप्पी, कि जैसे मैंने कज़न फाइल स्टोरी बनाई थी, उसमें मैंने देखा कि ही फेल्ट हैप्पी एंड दे वर आल्सो प्राउड दैट ही वाज़ एबल टू डू ऑल द थिंग्स बाय हिमसेल्फ एंड इन एफिशिएंट मैनर। तो ये सब थोड़ा दिखना चाहिए, ये फीलिंग ज़रूरी है। तो जब आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया, जैसे आपने एक स्टोरी लिख ली, आप स्टोरी लिखने के बाद स्टोरी को बंद करो, 15 मिनट का टाइमर लगाओ, 15 मिनट का टाइमर लगाने के बाद आप उस स्टोरी को कहीं मतलब, और पहले रूम पे बैठो, हटना शांत माहौल में, उसको लगातार रिहर्स करते जाओ। फाइनल रिहर्सल नहीं, बस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। 5-6 बार रिहर्स करके देखोगे, आपको स्टोरी एकदम रट जाएगी दिमाग में, है ना? वो इसलिए हेल्प करेगी क्योंकि आपने जो अपनी स्टोरी लिखी है वही सुना रहे हो, तो इट इज़ नॉट अ प्री कंसीव्ड कंसेप्शन, ऐसा कुछ मत समझना कि रटने का मतलब ये होगा। इट्स जस्ट लाइक आपने अपनी स्टोरी अच्छे से रिवाइज़ कर ली है, तो आप बोल सकते हो कॉन्फिडेंटली वहाँ पे। अब रुकोगे नहीं, क्योंकि 1 मिनट ही का टाइम मिलने वाला है। 1 मिनट क्या, अब तो आजकल 45 40 टू 50 सेकंड्स ही मिलते हैं। बोर्ड अच्छा हुआ तो आपको बोलने देता है अच्छा खासा। तो आपने जब ये प्रैक्टिस कर ली, देन आप टाइमर लगाओ अपने सारे, मैं क्या करता था, टाइमर लगाता था। टाइमर क्या, मतलब स्टॉपवॉच लगाता था, स्टॉपवॉच ऑन करता था, सामने मिरर रहता था, और मिरर पे अपने आप को देख के कॉन्फिडेंटली उसको नरेट करता था। और फिर आप देखो कि इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा ना, कि आपको खुद और मन करेगा चलो एक और स्टोरी लिख देता हूँ। सो ये करो, और धीरे-धीरे आप, हाँ, और फिर अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है एनवायरनमेंट से चेंज करने का। अभी आप शांत में बोल रहे हो, वहाँ शांति नहीं होगी, वहाँ चलो लाइन लगो, ऐसे होगा। गो आउटसाइड, देन प्रैक्टिस। टहलते रहो, देन प्रैक्टिस करो, क्योंकि रियल सिनेरियो वही है। यू नो, आई गॉट मच हैप्पी आफ्टर गेटिंग स्क्रीन्ड इन रेदर देन रिकमेंडेशन, क्योंकि मैंने वो स्क्रीन आउट देखा था ना, 353 रिपोर्टिंग, 16 गॉट स्क्रीन्ड इन। मैंने सोचा था ऐसा क्या होता है स्क्रीनिंग में। And eventually when I joined this college, like my seniors, every year some or the other guy get recommended for Indian Navy, Army, Air Force. मैं देखा था सर लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सो जब आपने ये सब प्रैक्टिस कर लिया, तो आप टाइम कम करते हो। जैसे मैंने 15 मिनट स्टार्ट में किया, जिसको ज़्यादा टाइम लगता है उसको 20 मिनट लो, फिर 15 मिनट्स करो, फिर 10 मिनट्स करो, इवेंचुअली 5 मिनट तक उसको लेके आओ। मतलब आप स्टोरी लिख के 5 मिनट आपको टाइम मिलेगा, तो अपने में नरेट करके, पहले नरेट करके एकदम शांत में, और धीरे-धीरे मर्मरिंग करके, आप इतना अच्छा 5 मिनट में ऐसा लगना चाहिए कि अरे! तो मतलब प्रिपेयर करके आ रहा है 2 दिन से, ऐसी नरेशन होनी चाहिए। तो नरेशन भाई मैटर करता है, और ऑफ कोर्स सिर्फ नरेशन मैटर नहीं करता, हमने क्या लिखा है वो भी मैटर करता है। और फिर उसके बाद आप कैसे ग्रुप के साथ हो वो भी मैटर करता है। किसी की बात कभी मत काटिएगा, क्योंकि है ना, कोई बात आपको बोलना है ना, तो उसकी बात सुनिएगा ज़रूर।
क्योंकि क्या पता उसमें कुछ ऐसा कोई चीज हो जिसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो। लेकिन ये भी नहीं है कि शांत बैठ जाना, बोलना जरूर। हर चीज इंपॉर्टेंट है इन अ वेरी बैलेंस्ड वे। Okay, I have another doubt related to TED. That can you please discuss the kind of profession that you have mentioned in your each TED, if you have remembered? Like one thing I always did at the end at my story, that I always write a good conclusion and always finish the task. Like अगर मान लो एक Arjun, स्टोरी I think Shiv asked about profession, right? Yes, ma'am. इन लोगों को प्रोफेशन प्रोफेशन का कीड़ा काट रहा है आज। हम प्रोफेशन मतलब समझा नहीं। मतलब हीरो को लॉयर डॉक्टर ऐसे बनाते हैं ना। हाँ, if you feel that his clothes, his attire and the the whole room is of like a कोर्ट रूम है, तो कोर्ट रूम में अगर आप उसको लॉयर नहीं बनाओगे तो फिर क्या ही बनाओगे। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो लॉयर अरे वो मैं ये नहीं मैटर कर रहा कि आप उसको क्या प्रोफेशन बता रहे हो। नो, इट डज नॉट मैटर। आपकी ओवरऑल स्टोरी क्या आ रही है, आपके एंड में कंक्लूजन कितना अच्छा है, कितना पॉजिटिव है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि स्टोरी That दिख रही है matters. कि वो कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही तो आपने दिखा दी शुरुआत में कि अरे वो तो सब सही था और फिर सब कुछ सही हो गया एंड में। ये तो फिर तो ये होगा कि आप रट के आए हो कि हर जगह अच्छा ही दिखाना है। बट हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऑफकोर्स उसको सॉल्व करिए और एक अच्छा कंक्लूजन दीजिए। और अगर हीरो कहीं आइदर टेक इट फ्रॉम द पिक्चर या अपने लाइफ और अपने इंटरेस्ट से लिखो। इनको ये बात समझ में ही नहीं आती और आधा Sorry. घंटा सेम पूछो। Ma'am, actually, I have a question from you. प्रखर अभी उससे ही पूछ लो, देन आस्क मी लेटर। Okay. हेलो, एम आई ऑडिबल? यस तो भाई जैसे ग्रुप डिस्कशन होते हैं दोनों, तो उसमें ये बताओगे करंट अफेयर्स और बेसिक नॉलेज जो जनरल नॉलेज होती है ये कितना ज़्यादा मैटर करता है या पार्टिसिपेशन ज़्यादा मैटर करता है? आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट यू आर स्पीकिंग एंड हाउ यू आर स्पीकिंग। मतलब आपके जो करंट देखिए, अगर कोई आ गया कि करंट अफेयर्स पे ही आ गया तो ऑफ कोर्स नॉलेज, बिना नॉलेज के आप क्या ही बोलोगे। अभी अगर आ जाए कि इसराइल और ये इसराइल और जो हमास का प्रॉब्लम है, या इवन दो द होल वो ये आपका मुस्लिम वर्ल्ड, ये जो ये वो वाला रीजन है, अगर वो आपका टॉपिक आ जाएगा तो आपको अगर नॉलेज ही नहीं है कि अक्टूबर 7 2023 को अटैक हुआ था, फिर फर्दर कितने अटैक हुए, फिर ईरान कब आया, फिर हिजबुल्ला को कैसे उन्होंने मारा, फिर वो पेजर अटैक हुआ था। तो अगर आपको जब नॉलेज नहीं तो फिर आप बोलोगे कैसे। नॉलेज इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इफ यू डोंट हैव आल्सो नॉलेज नो, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो सुन सुन के भी। कुछ भी नहीं पता है ऐसा तो होगा नहीं, कुछ भी नहीं पता है इतना टफ टॉपिक आएगा ही नहीं। अगर मेरे में तो बहुत ईजी आया था आपको बताया कि व्हाई द इंडियन पॉपुलेशन इज हैविंग पुअर हेल्थ। तो 3 रीजन से उससे एक रीजन को कंक्लूड करना था कि क्या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। तो 3 थे, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल और एक था पुअर एयर पोल्यूशन और एक था एडेल्टरी फूड। तो सब लोग एडेल्टरी फूड और एयर पोल्यूशन बोल रहे थे। मैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे बोला पूरे ग्रुप को कन्विंस करके उस पे कंक्लूड करा कि हाँ यही होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे वो इम्पोर्टेंट था। और पॉइंट्स भी अगर आप लेजिट दोगे ना और कन्विक्शन के साथ दोगे, मतलब कन्विक्शन के साथ बोलोगे ना तो लोग सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। लोग क्या मतलब दुनिया ही सुनेगी भाई आपकी, अगर आप कन्विक्शन नहीं बोलोगे और सही बोलोगे जो आपको लगता है एकदम। और तो वही है, थोड़ा सेंसिबल, थोड़ा जेन्युइन और थोड़ा कॉमन सेंस लगा के जीडी आराम से एक्सेल किया जा सकता है। बट उसके लिए आपको नॉलेज भी होना ज़रूरी है और कैसे आप बोल रहे हो। और प्लीज़ किसी को काटना मत, जैसे मैं तो कह रहा हूँ। जैसे एक बंदा था जो अच्छा बोलता लेकिन वो हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करता था, तो उसका क्या ही मतलब है डोमिनेट करने का। आप डोमिनेट मत करो ना, डोमिनेट करके किसी से कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं है। आई बिलीव दैट इफ यू हैव इन इट एंड अगर बगल वाले के भी अंदर वो चीज़ है तो यू बोथ विल गेट रिकमेंडेड। तो रिकमेंडेशन किसी को हरा के आप नहीं कर पाओगे। आप रिकमेंड होगे, आप अपनी क्वालिटी की वजह से रिकमेंड होगे। ओके, गॉट इट, थैंक यू। Hello Arjun, congratulations for your achievement. थैंक And यू। Arjun, in between the conversation, you said about the 10 plus 2 BTech entry something. या Can you please put some light on it? So it was 2022 January 4. I went for a technical entry scheme, technical entry scheme 46 इलाहाबाद। एंड उस टाइम पे ना भाई कोविड था,
आई वाज नॉट दैट फिट एंड उतना कुछ वो भी नहीं था कि कैसे कर क्या करना है, बस मैं आई वेंट एंड आई गॉट स्क्रीन्ड आउट। 353 रिपोर्टेड एंड 16 गॉट स्क्रीन्ड इन ओनली। सो उसके बाद से 3 साल तक मेरे को ये लगता था यार ये स्क्रीनिंग क्या है भाई, स्क्रीनिंग क्यों है? मेरा लगता था क्यों नहीं, सबको लगता है स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली जाके बस जितने लोगों को बुलाया है कर लेना चाहिए, है ना? बट ऑफ कोर्स एसएसबी उतनी ही कैपेसिटी ले सकता है, 30 की 30 ही कैपेसिटी ले सकता है, 30-40 इससे ज़्यादा वो कैपेसिटी नहीं ले सकता, इसीलिए स्क्रीनिंग है। पहले शायद नहीं होती थी, बहुत पहले की बात करूँ तो। अब तो लेकिन स्क्रीनिंग तो कॉम्पिटिशन बढ़ गया है भाई, तो कॉम्पिटिशन बढ़ गया तो फिर आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। So this was that one attempt, then this recommendation, and then again मतलब अभी और भी मतलब और attempts हैं मेरे पास। Okay, thank you. Hi Arjun, Hi, congratulations. So, thank you. can you describe your image from PPDT from 4 AFSB? Okay, 4FSB we got 4 friends. You can say blurry image थी पूरी, 2 लड़के थे, 2 मेल एंड 2 फीमेल, कॉलेज वाले लग रहे थे एंड दे वर डिस्कसिंग समथिंग एंड डिस्कशन ऐसे हो रहा था कि मतलब एक बाउंड्री थी, वायर्ड बाउंड्री थी और वहाँ पे कोने में खड़े होकर 4 लोग डिस्कस कर रहे थे। सो आई मेड अ वेरी वेरी सिंपल स्टोरी। उसमें मैंने स्टोरी में बताया कि वो 4 लोग दोस्त थे कॉलेज में एंड दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स। तो वो प्रिपेयर करते हैं, एक बंदा इनिशिएटिव लेता है ग्रुप डिस्कशन के बारे में। तो मतलब वो क्या करता है, आइडेंटिफाइंग पहले सबसे पहले तो दे मेक देयर टाइम टेबल, आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड उसके बाद मेट देयर डेली एंड वीकली टारगेट्स, सॉरी met their weekly and daily targets and even helped each other in their areas of improvement। और उसके बाद मैंने फिर बोला कि वो जाते हैं एग्जाम देते हैं, अच्छा जाता है एग्जाम और वो डिस्कस करते हैं और अपने जूनियर्स। हाँ, और ये भी दिख रहा था कि साइड में लोग बैठे हुए हैं, है ना? तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई एक बंदा एड्रेस कर रहा है, बाकी 3 लोग उसको देख रहे हैं। तो मैंने ये भी बताया कि वो ग्रुप डिस्कशन के पॉजिटिव्स भी बता रहे थे अपने जूनियर्स को, कैसे वो हेल्प कर सकते हैं। और फिर फर्दर उन लोग को जॉब भी मिल गई। ये भी थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया मैं, जॉब तो क्या है उसमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा था। और फिर वही जैसे मतलब स्क्रीनिंग के रिजल्ट्स आए तो अगेन आई गॉट स्क्रीन्ड इन देयर। Thank you. भाई आपने साइक के लिए पहले से कोई थीम बनाया, तैयारी की, या मतलब कुछ स्टोरीज पे कुछ किया, या डायरेक्ट वहीं पे जाके कर दिया? नो, आई प्रैक्टिस लाइक विद एज सी मैम आपको जो पढ़ा रही हैं आप वो पहले होमवर्क तो करो। पहले आप अगर आपको 100वीं सीढ़ी चढ़नी तो पहली तो सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। पहला, दूसरा, तीसरा मतलब 100वां रिकमेंडेशन है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो चढ़ना ही पड़ेगा। पहले बेसिक्स तो बनाने ही पड़ेंगे, समझना तो पड़ेगा ही। मतलब जैसे आपने पूछा कि आपने साइक के लिए कैसे क्या किया, तो जैसे वही मैं बोला कि मैम का जो मैम बताती थी मैं उसको फॉलो करता था और फिर मैं देखता था कि मेरे मेरे में कैसे वो मैं मतलब चीज़ अपने ओरिजिनैलिटी की से कैसे मैं वो ला सकता हूँ। तो वो दोनों ऐड करके धीरे-धीरे करता रहा। और मुझे भी नहीं पता, मैं सब सच बताऊँ तो मेरे को भी नहीं पता कि ऐसी कौन-सी चीज़ हेल्प कर गई होगी वहाँ पे, जो मेरे को रिकमेंडेशन आ गई। मैंने किसमें क्या परफ़ॉर्म किया होगा। तो वो तो इसीलिए वो सब कहते नहीं ना, और बड़े फ़ेमस और बड़ी क्लीशे लाइनें कह लो या बड़ी बेसिक सी लाइनें, कि आप अपने कर्म पे फ़ोकस करो यार। जो आपके हाथ में उस पे फ़ोकस करो, रिज़ल्ट पे फ़ोकस मत करो। आता है, मेरे मन में भी आता है, तो मैंने वही बोला था। मैम ने बोला था कि बी काम, मेरे पापा ने बोला था कूल रहो, कॉन्फिडेंट रहो, तुम कर लोगे, है ना? तो और मैम ने ये भी बोला था यू विल लाइकली टू बी गेट रिकमेंडेड। ये 4 चीज़ें अपने भाई बता रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस पे जाने से पहले, इंटरव्यू में जाने से पहले पैनिक तो मैं भी हुआ था। लेकिन ये 4 चीज़ें मैं याद रखा था, चाहिए चलो ठीक है, दे देंगे, अच्छे से देंगे। मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस है, मैं कर लूँगा। तो जैसे और मान लो वहाँ जैसे पे आपने साइक के बारे में पूछा, तो साइक जैसे मैं वही है कि मतलब एक 2-3 आप टेस्ट लिखो और जहाँ पे आप खुद से अपनी स्टोरी पढ़ोगे ना और प्रैक्टिस करके आपको खुद को समझ में आने लगेगा कि यार ये तो इतनी दमदार स्टोरी लग नहीं रही है। होता है जब आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते हो तो आपको लगता है ये स्टोरी ना इसमें ये इम्प्रूवमेंट हो सकता था। मैम से आप पूछ लो, मैम को भेज दो, तो मैम आपको बता देंगी कि ये स्टोरी कोई स्टोरी वैसे ना कोई स्टोरी अच्छी या कोई स्टोरी खराब, हाँ, कोई स्टोरी बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग बहुत अच्छी स्टोरी लिखते हैं, है ना? तो उनका रहता है कि उनके पहले से अंदर एक्यूमेन है लिखने का। बट वही है कि आप अपने से रिलेट करोगे और जितनी ज़्यादा ओरिजिनैलिटी रखोगे वो बाकी जगह भी दे रिफ्लेक्ट होगा। तो वो भी इम्पोर्टेंट है। आप किसी की अच्छी स्टोरी लिख के रट के चले जाओगे, वही पिक्चर आ जाएगी
वो आपके पर्सनालिटी से ही ना मैच करे। एक स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी, लेकिन आप सब कुछ ऐसे याद करोगे तो नहीं मैटर करेगा। तो वही स्ट्रक्चरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैसे स्ट्रक्चर करके उस चीज़ को बता रहे हो। अब जैसे मान लो कोई स्टोरी में आया और वो लॉयर है, अब मेरे को पता है कि मेरे को लॉयर बनाना है, तो मैंने उसके बारे में नॉलेज गैदर किया, जाना और वो ही लिख दिया, तो वो मेरी पर्सनैलिटी से कैसे मैच कर गया? जैसे एक बार आप फिर से क्वेश्चन पूछना, मैं थोड़ा समझा नहीं आपका क्वेश्चन। जैसे कोई पिक्चर दिखाई गई और उसमें लॉयर है, तो मैंने उसके प्रोफेशन के बारे में जाना और वो कैसे एफिशिएंटली बहुत अच्छे से कोई काम कर सकता है, वो सारे एक्शन डाल दिए, तो फिर वो मेरी पर्सनैलिटी से कैसे मैच करेगा उसमें, क्योंकि मैंने तो वो नॉलेज गैदर करके और डाल दिए वो अच्छे वाले पॉइंट उसमें। तो अगर आप कोई पिक्चर ऐसे दिखा रहा है जिसमें वो एक लॉयर है, तो मतलब वो ऐसे ही अगर है भी, तो मतलब आपको दिख रहा है कि वो एकदम तैयार हो रहा है, कुछ तो ऐसा होगा जिसमें आप ये बता सकते हो, मतलब इसमें कोई याद करी हुई चीज नहीं हो गई। अगर आपको पता है लॉयर का क्या काम होता है, तो ये नहीं रिलेट करेगा आपकी नॉलेज की आपको लॉयर के बारे में कितना पता है। अब वो लॉयर मान लो तैयार हो रहा है, तो आप लिखते हो कि वो अपने केस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करता है, ठीक है, अलग अलग अब अलग अलग चीजें नोट करता है, मतलब नोट इन द सेंस की अलग अलग चीजें केसेस को रेफर करता है, फिर फर्दर वो मिलता है और फिर वो अपना केस जीतता है और वो काफी खुश होता है, क्लाइंट्स भी जीतते हैं। तो ये आपकी क्वालिटीज, ये सब क्वालिटीज आपकी मैच कर रही हैं। तो ये नहीं मैटर कर रहा है कि हम लॉयर के बारे में कितना नॉलेजेबल हो, लॉयर के बारे में कितना करेक्ट लिख रहे हो, नहीं। अब लॉयर ने क्या किया आपकी स्टोरी में, कैसे हेल्प किया किसी को, कैसे कैसे आपने उसको क्या हेल्प किया, या यही सब पॉजिटिविटी, या किसी को हेल्प कर देना कि, और या कॉन्फिडेंट रहना, ये वो जो 15 ओएलक्यूज होते हैं, बट वो भी नहीं है, वो तो मतलब ऑटोमेटिकली दिखने लगेंगे आपके। यही यही सब है। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया था कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ओएलक्यू है या सबसे ज्यादा वेटेज होता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी आप गौर करके वैसे करना। Basically, वो तुम्हारे desires and qualities show करेगा, which I have told them multiple times. So Rohit is Rohit, थोड़ा थोड़ा शिव, थोड़ा थोड़ा दशम. They are going to get stuck there. वो noodles बनाकर जब तक नहीं खाएंगे अपने सारे thoughts का, they'll not get the responses. So Arjun, if you have to wake up early, we can end it here. And if you don't have to wake up early, if someone has to ask something, you can answer. Does anyone else want to ask something to Arjun? रोहित जैसे बच्चों के पेरेंट्स सोचते होंगे मैम ने क्या पढ़ाया, कुछ तो आता नहीं है ना रोहित? And नहीं just मैम, before you ऐसा joined Arjun, I had explained them about the hero, how to choose the hero. Where are you, Shiv? Ma'am, he actually left the meeting. एंड मैम एट लास्ट आई वांट टू ऐड वन थिंग आल्सो। मैम का एक मैसेज आया था ग्रुप में कि मतलब मोटिवेशनल टाइप मैसेज था, कि जिसमें उन्होंने बोला कि एट लास्ट एक लाइन लिखी हुई थी कि पीपल हु हैव वन ऑफ 10,000 ऑफ द क्वालिटीज आर आल्सो गेटिंग रिकमेंडेड। तो बी कॉन्फिडेंट और अपने पे भरोसा रखना, तो ये भी बहुत जरूरी है। मतलब आपको, क्योंकि कुछ कभी कभी होता है कि आपके अंदर सब कुछ है बट आप खुद पे भरोसा नहीं दे रहे हो, तो वो लाइन भी काफी मोटिवेटिंग रहती है। मतलब कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो लगातार घिस रहे हो तो अपने आप को, तो अगर कोई ये चीज लिख दे और आप फिर उसको वही आप अच्छे से लो कि हाँ, अगर ये जो आपसे कम है वो रिकमेंड हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते। मतलब ऑफकोर्स मोटिवेशन उन्होंने भी मेहनत करी होगी, जो रिकमेंड होता है वो मेहनत करता है, ऐसा नहीं है, बट वो एक चीज है कि आप भी कर सकते हो। Okay, Arjun, thank you so much. थैंक यू And मैम। all मैम the एक क्वेश्चन है, participants. हाँ लास्ट ठीक लास्ट है, कैमरा अर्जुन, ऑन। एक पर्सनल क्वेश्चन है, ठीक है? सो इट्स लाइक जीपी में अभी कोलकाता है यार, नॉर्थ साइड है, ठंड बहुत है, हाथ चले थे लिखते वक्त? हाँ देखो, हमारे में ना जो जहाँ जिस रूम में हम लोग थे ना, वो साउंड प्रूफ रूम था और इतना मतलब वहाँ पे ठंडा नहीं था सुबह। और इनफैक्ट इफ यू देख, नॉर्थ साइड में तो ठंडा रहेगा, कोलकाता में आओगे ना तो कोलकाता में इतना सुबह सुबह इतना ठंडा नहीं रहता है, कोस्टल एरिया है तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। और हमें तो रूम के अंदर बैठा के दिया था, कहीं कहीं बाहर होता होगा शेडिंग एरिया में, लेकिन हमारे में तो रूम के अंदर था, तो कोई इशू नहीं था। ओके ओके, थैंक यू सो मच। Okay, Arjun, thank you. थैंक यू सो मच मैम।